بدل گئی، اب زندگی کے نئے امتحان ہوں گے. 10ویں تک تو بس اسکول تھا، اب نئے آسمان ہوں گے. کوئی سائنس، کوئی کامرس تو کوئی آرٹس کی راہ پر چلا ہے، کہ کوئی سائنس، کوئی کامرس تو کوئی آرٹس کی راہ پر چلا ہے. 10ویں کے بعد ہر دوست اپنے نئے سفر پر چلا ہے. بچپن کے وہ حسین دور اب بچے چھوڑ رہے ہیں. 10ویں کے بعد ہر قدم ایک نیا فیض ڈھونڈ رہا ہے. کلاس روم بدل گئے، وہ پرانے بینچ بھی چھوٹ گئے، کہ کلاس روم بدل گئے، وہ پرانے بینچ بھی چھوٹ گئے. 10ویں کیا پار ہوئی، یاروں کی وہ محفل ہی روٹ گئی. آج کل جو چل رہا ہے سماج میں، ایک پرائیویٹ سکول کو ایک مافیا بتایا جا رہا ہے، لیکن یقین مانیے کوئی پیرنٹ حضرات چھوڑ رہا ہے پرائیویٹ سکول جو سکم کران یس پاسبل پرائیویٹ سکولوں پر سکم پرائیویٹ سکولوں میں تم بچ پران، خاص کر بجٹ سکول پرائیویٹ سکول زیادہ ہائی فائی سکول ہائی فائی پونسو رہی، مگر تعلیم یمن سکولن میں اصل ملان. بیٚیہِ کیٛاہ چھُ یمن منٛز گژھان، یمن منٛز چھُ ہر کُنہِ سکولس منٛز تقریباً 10 پٮ۪ٹھٕ 12 پٮ۪ٹھٕ 50 بچن تام فری پران. یِتھ پٲٹھۍ سٲنِس سکولس منٛز چھِ ییٚتٮ۪ن یِم اَسہِ مُنسلک آسان یِمن آسہِ پتہ سٲنِس سکولس منٛز چھِ 100 بچہِ تام یِم بالکل فری چھِ پران، یِمن نہٕ کٕہٕنۍ فیٖس، چاہے تتھ منٛز کانٛہہ کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ پیرنٹ غریب چھِ یا کانٛہہ بچہِ آرفن یا کانٛہہ چھُ BPL کیٹیگری ہُنٛد، بالکل فری آف کاسٹ ایجوکیشن دِوان. میرے اپنے بچے میں یہاں پر پڑھتے ہیں، اور وہ بچے جو یہاں پر فری پڑھتے ہیں وہ بھی میرے بیٹی کے ساتھ بیچ شیئر کرتے ہیں، میری بیٹی کے ساتھ بیچ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ میری نظر میں یہ سارے میرے بیٹے ہیں جو یہاں پر پڑھتے ہیں. اور ہمارا یہ ہونا بھی چاہیے پرائیویٹ اسکولس کا یا ایک ٹیچر کا یہ ہونا بھی چاہیے کہ اگر ہم ان بچوں کو اپنے بچے سمجھیں گے تو ہم جو ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوگا. اپنے پیرنٹس کی دعائیں اور اپنے ٹیچرز کی دعائیں، ان دو چیزوں سے کبھی محروم نہیں ہوئی. اور ان کے اپوزٹ میں 2 چیزیں جو آتی ہیں، اپنے پیرنٹس کی بد دعائیں، اللہ نہ کرے کسی کو ملے، اور اپنے ٹیچرز کی بد دعائیں. ان 2 چیزوں سے ہمیشہ ڈرنا، ہمیشہ ان 2 چیزوں سے ڈرنا. آلویز یہ کوشش کرنا کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیچرز کی بلیسنگز لیں. ہمارے جو اینسسٹرز ہیں وہ کوئی خاص پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ اتنے زیادہ اسکول نہیں گئے ہوتے، لیکن تب بھی انہوں نے دنیا کو آج تک چلایا. ہمیں بہت اچھے اسکالرز دیے، ڈاکٹرز دیے، سائنٹسٹس دیے. وہ خود اسکول نہیں گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی فیملیز میں فرسٹ جنریشن لرنرز پیدا کیے، جن کے برعکس ہم نے دنیا کو ایک نئی ٹیکنالوجیز دی، نئی چیزیں دی، نئے لوگ دیے، ہیومن ریسورس دیا، نیچرل ریسورس دیا، ہیومن میڈ ریسورس دیے. یہ سب کچھ تب پاسبل ہوا جب ہم نے اس جنریشن گیپ کو ایکسیپٹ کیا. آج کی جو جینسی ہے ان کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، بولنے میں ہوتا ہے، جو ٹون ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹون اگر ہمارا صحیح ہے تو ہم اپنے پیرنٹس کو بھی کریکٹ کر سکتے ہیں. سلیپ لیس نائٹس اور جو فیملی ایونٹس ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، وہ سب بند کر کے اپنے گول کی طرف محنت کرتے رہتے ہیں. اب آپ کے سامنے نیسو ایسپیرنٹ ہے، ازکا آپ کے سامنے وہ بتائے گی اس نے اپنی جرنی کیسے سٹارٹ کی اور ان کو کامیابی کیسے ملی. نیٹ جو ہے کافی زیادہ پروفیشنل ایگزام ہے اینڈ اٹس کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام دا ڈفرنٹ ٹائپ آف بورڈ ایگزامز وی ہیو. تو فرسٹ آف آل آئی لائک ٹو تھینک آلمائٹی اللہ آف کورس، انہیں کی وجہ سے اگر ان کا نہیں ہوتا ایسا، میری قسمت میں ایسا نہیں لکھا شاید میں ایسا اچیو نہیں کر پاتی. اینڈ نیکسٹ مائی ٹیچرس اینڈ مائی آف کورس مائی پیرنٹس. میرے پیرنٹس نے ہمیشہ مجھے بہت ہی زیادہ گائڈ کیا، ان کے سپورٹ کی وجہ سے آج جو کچھ بھی میں ہوں اپنے ٹیچرس اور اپنے پیرنٹس کی وجہ سے. تو میں ان کو تھینکس کرنا چاہتی ہوں. میری مدر اپنے ہے. نیٹ کوالیفائی کرنا میرا اپنا ڈریم تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی سوسائٹی کو کچھ دوں، ایک ڈاکٹر بن کے نہیں بلکہ ایک فرینڈ بن کے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ ٹو گاڈ، جیسے کہ ابھی میم نے بھی کہا کہ سب سے زیادہ بلیف جو ہے وہ ڈاکٹر پر ہی ہوتا ہے. سب بلیو کرتے ہیں کہ نہیں جب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کوئی بیمار ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے نہیں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ریلائی کرتے کمپلیٹلی اوور دا ڈاکٹرز. اور پھر ڈاکٹر کی بھی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ نہیں مجھے
یہ میرے پاس آئے ہیں سو آئی ہیو ٹو ٹریٹ دیم, تو وہ اس کے اوپر ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور ڈاکٹر کا پروفیشن جو ہے کافی زیادہ نوبل پروفیشن ہوتا ہے. اٹس ناٹ اینڈ اونلی کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے تو صرف آپ ویسے ہی اپنی سوسائٹی کو سرو کر پائیں گے. آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ جو کچھ بھی بنیں, وٹ ایور یو آر, a teacher, a lawyer, a doctor, an engineer, whatever you are, you should try to be the best. آپ جو بھی بنیں, you should try to be the best. پرکت ترٲوِتھ سُہ کتھ پالے سورُے علم چھُ الف لام میم میم. Honorable Chairman sir, respected Principal sir, distinguished personal guests, teachers and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A very welcome to all of you. Today is a special occasion as we have gathered here to appreciate and celebrate the success of students who have qualified NEET 2026. So let us begin this beautiful occasion with the blessings of Almighty Allah. To begin the program, respectfully, I invite here Qari Shamim sir for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. رسولی خدا کے مثال اللہ سینہ سچوک جمال اللہ سچوی انور سچو شایخاور نسوی عید ہنگشم ہلال اللہ اللہ. مشم بے قراری مشم انتظاری یمنا ودس یمدلال اللہ اللہ. یہوئی چون تمنا یہوئی آئیزو چون پاگل کرس سر نثار اللہ اللہ. اگر آپ کو یہ کامیابی حاصل کرتے ہیں اس میں آپ کو نو ڈاؤٹ ڈفیکلٹیز آئیں گی لیکن امپاسبل نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہاؤ لانگ یو کین ریٹین دس سکسیس. اٹ مینس ایک بچہ اگر کوالیفائی کرتا ہے, نیٹ کوالیفائی کرتا ہے, اس کی جرنی یہاں ختم نہیں ہوتی, اس کی ایک نئی جرنی شروع ہوتی ہے. ایک یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی, مجھے اس کی بات اچھی لگی. اس نے کہا کہ میٹرک سے پہلے یا میٹرک تک ہمیں یہی لنچ بریک, پکنک اور یہ باتیں ملتی تھی, اس کے بعد ہمیں اسائنمنٹس ملتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جو ہی 11 شروع ہوتا ہے سب سے پہلے آپ پر پیرنٹس کا پریشر لازم ہوتا ہے. کیا کرو گے, ڈاکٹر بنو گے کہ انجینئر بنو گے؟ ہم لوگ ایسے ہیں انجینئروں کو ڈاکٹر بناتے ہیں اور ڈاکٹروں کو انجینئر بناتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس صحیح کوآرڈینیشن نہیں ہوتی ہے, صحیح کنسلٹیشن نہیں ہوتی ہے, صحیح کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے. تو کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اگر ایک بچے کی صحیح کاؤنسلنگ ہو جائے, دیکھیے جو ہماری ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہاں پر بچے کو بچے کی چوائس پڑے گی. یہاں پر ہمیں فالو کرنی پڑتی ہے چوائس اپنے پیرنٹس کی, اپنے یاروں دوستوں کی.
अपने रिश्तेदारों की। नहीं जी आपको पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, चाहे आपका अगर मन मेडिकल में नहीं नॉन मेडिकल में होगा, लेकिन हम आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये आपके साथ जाती है बच्चों के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले ये देखना है कि आपको किस स्ट्रीम में, क्योंकि कोई भी स्ट्रीम जो है ना दुनिया की, सभी वेरिएबल स्ट्रीम्स होती है। सिर्फ डॉक्टर्स ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ इंजीनियर्स ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ टीचर्स ही हम सब कुछ नहीं। हर एक का हर एक जगह पर अपना वैल्यू है। आप इस स्कूल में बैठे हैं, यहाँ के चेयरमैन का एक रोल है, प्रिंसिपल का एक रोल है। क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि अगर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट किसी का रोल है वो यहाँ के स्लीपर का है? आप बोलोगे क्यों? चेयरमैन के बदले प्रिंसिपल का हो सकता है, प्रिंसिपल के बदले टीचर अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन स्लीपर का सब्स्टिट्यूट टीचर नहीं हो सकता। डू यू एग्री विथ मी? सो हमें इन चीजों का ख्याल रखना रहता है हमारे कैरियर में। जब आप कैरियर में आगे जाते हैं तो ये चीजें आपको देखनी है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं उन बच्चों को जिन्होंने इतनी स्ट्रगल करके इस मुकाम पर पहुंचने की सआदत हासिल की है। मैं इसको सआदत ही समझूंगा। इट इज नॉट सो इजी। इट इज इजी टू परसीव एरर देन टू फाइंड ट्रूथ। For the purple lies at the top, which is easily seen, while the latter lies very deep, where a poor interest to search for. कहने का मतलब मेरा ये है, मुझे शायद ड्राइविंग नहीं आती होगी, लेकिन मैं ड्राइवर को जरूर बोलूंगा एक दो छेरी तक चलाऊं। ये इन बच्चों ने जो देखा है ना, वो हमने नहीं देखा है। जिन्होंने ये मेहनत की है, मेहनत के साथ जो ये आगे आए हैं, ये इनको पता है, इन्होंने मिडनाइट ऑयल बर्न किया है इसके लिए। और ये आप आने वाले बच्चों के लिए जो आउटगोइंग मैट्रिक है या जो निकले हैं यहाँ से, ये आपके लिए इंस्पायरेशन है, क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं है जो हो नहीं सकता। जैसे हमारे इकबाल साहब ने कहा, वो कौन सा अकीदा तय हो नहीं सकता। जब एक इंसान, एक बच्चा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, मेहनत करे, he can achieve any success. Students, I'm standing in front of you by taking a module to share the experience like before 10th and after 10th. Before 10th, life was like pass करना है, homework है, lunch break है, fun है, picnic है. This was the life before 10th. Now after the 10th, the life is like stream क्या है, PCB है, PCM है, commerce है, कौन सा tuition है, career क्या है, goal क्या है. It may look simple, career क्या है, PCB है, वो है, ये है, but internally it's sucking. मतलब internally ये वो feeling देता है कि अब उसकी नजर भी है, इसकी नजर भी है, वो भी सोचना है, ये भी सोचना है. This is all about it. Before 10th, life felt so simple. We were used to worry about the small things, homework, exams, getting scolded by teachers, getting scolded by our worthy principal sir, Mr. Mohammad Ladifani, the picnics, the farewell. नहीं आदल सर हमें जाना है, हम नहीं मानेंगे. We were like it. Our batch were like it. अगर teacher staff पिकनिक जाएंगे, सर हमारा last year है, please हम नहीं जाए. And I swear to Almighty, आदिल सर was the person जो हमें लास्ट में रहे हैं कि हाँ आप लोग जाओगे. He got इकबाल सर के आप लोग पिकनिक जा रहे हैं, आपने बच्चों से पूछा, ये भी आएंगे. That was आदिल सर. I'm thankful to Al Habib staff by the core of my heart. I had joined Al Habib when I was in grade 4, and my first day was like in the corner. Like, क्या जाए school? I was like it. And then it ends. मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? अगर मैं ये तब होता अभी मैं हायर सेकेंडरी भी होती, मेरा 11 भी नहीं, मेरा 12 भी नहीं, मेरा नीट का करियर भी नहीं और मेरी जॉब भी नहीं. ये मेरा वो मॉड्यूल था. आफ्टर 10 हमने देखा है कि करंटली हमारा ऑलमोस्ट सारा क्लास हायर सेकेंडरी पार पूरा जाता है. सो हम नहीं जाते करंटली, मतलब मेरे तो ऑफ ही रहते हैं. लेकिन अल हबीब में मुझे याद है एग्जाम के दिनों हमने लास्ट टाइम ऑफ करा था. सो वी वाज लाइक, लतीफ सर ने 2 दिन बाद ही कॉल किया, बच्चे घर में क्यों आए. रियलाइज होता है हायर सेकेंडरी हम महीने के महीने जाएंगे, नो वन इज गोइंग टू केयर, कोई पूछेगा ही नहीं बेटा आप किधर थे. नेक्स्ट डे आए क्लास में, दैट्स इट. बट अल हबीब वाज द प्लेस जहां नेक्स्ट डे पूछा जाता था. दैट्स द केयर. यहाँ का स्टाफ, ऑनरेबल इकबाल सर, अमीन सर, सजाद सर, हमारी फीमेल टीचर थी निखात मैम, रूफ सर, एंड ऑल अदर मेंबर्स. I'm really thankful to all.
Today what I am, I'm able to speak 2 words in front of you just because of Al Habib. When I was in grade 4, I was like मैं काफी करें. जब मुझे first time stage पे anchoring के लिए बुलाया, my hands were like this. I was shivering all the time. Then we had a teacher, Akram sir, ma'am, and Umar Manzoor sir. They appreciated. कोई नहीं होता है, you will, and that's Al Habib. The point you will, that's the Al Habib. In English we say Al Habib is 1 in million, but Anam says Kucha Al Habib. Al Habib is not just a school for us, it's an emotion. wallahi इस जैसे स्कूल मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा है. आज तक आपको पता होगा कि 10th के बाद बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज होती है. ये क्रूशियल ईयर्स होते हैं हमारे बाद 10th के, बहुत ज़्यादा क्रूशियल ईयर्स होते हैं और यही इसी में हम अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं. अल हबीब में हमने 10th तक पढ़ा है. मैं इतनी सी थी जब मैं अल हबीब आई हूँ. 4th से मैंने अल हबीब ज्वाइन किया है. वल्लाही यहाँ की टीचर्स, यहाँ के प्रिंसिपल सर, चेयरमैन सर, हम अपने बच्चों की तरह रखते हैं. मतलब अल हबीब जैसा स्कूल मैंने जिंदगी में नहीं देखा है. गोया कि मैं हायर सेकेंडरी जाती हूँ, वहाँ टीचर्स भी उन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन होती है, लेकिन अल हबीब जैसा मज़ा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा है. हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है. हमारी प्रीवियस 10th में हमने लड़ाइयाँ भी एक साथ की है, घूमा भी है. मुझे एक इंसिडेंट याद आया अपने स्कूल का. यहाँ पर हमारी प्रीवियस टीचर मिस निखत मैम का, उनकी फेयरवेल थी. हमने अपनी फेयरवेल पहले ही मनाई थी. फिर शायद 8th जॉर्ज 9th में है, उनकी फेयरवेल थी निखत मैम के साथ. तो उन्होंने बोला कि आप भी आ जाओ हमारे साथ, आप भी हमारे साथ एंजॉय करो. और हबीब के साथ पिकनिक्स इतने एंजॉय किए हैं, चाहे फेयरवेल हो, एनुअल डे हो, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है. मैं यही कहना चाहूँगी कि आखिरकार 10th के बाद जो हमारा करियर स्टार्ट होता है, हमें चाहिए कि हम इन 3 सालों में मेहनत करें, क्योंकि 10th के बाद कॉमर्स कोई लेता है, आर्ट्स कोई लेता है, मेडिकल साइंस स्ट्रीम कोई लेता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स लेते हैं. हर कोई अपना अपना सब्जेक्ट लेता है जिसमें जिसको इंटरेस्ट हो. ये 3 साल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल ईयर्स होते हैं, हमें इनमें मेहनत करनी होती है. पहले तो मैं मुबारकबादी देता हूँ अपने सर आदिल साहब का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया है इतने कम नोटिस में. और मैं उनको मुबारक करना चाहता हूँ जिनके लिए फंक्शन आज है, जिसको हमने नाम दिया है फैसिलिटेशन. ये जो इवेंट है आज, इसका मुद्दा ये है, इसका मकसद ये है कि आपको देख के, आप जिन्होंने माशाल्लाह क्वालिफाई किया है, जो हमारे बाकी बच्चे यहाँ पे हैं, आपको देख के वो इंस्पायर हो जाए. मेन मकसद इसका यही है, ताकि हम आपकी इज्जत बख्शें और वो भी ये इंस्पायर करें, वो भी ये चाहे कि हम भी आगे चल के ऐसा करें. यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, माशाल्लाह वो वाले बच्चे भी हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है. मेरी तरफ से इनको पहले जितनी भी दिल की उम्मीद कह रहा हूँ उससे कॉन्ग्रेचुलेशंस. और इंशाल्लाह आगे चल के इनका फ्यूचर तो हमें पता ही है ब्राइट है. लेकिन जो बाकी बच्चे हमारे हैं 10th के हैं या छोटे बच्चे हैं 12th के हैं, तो उनको ये देखना है कि जैसे इन बच्चों ने ये क्वालिफाई किया, हमें भी कोशिश करनी है कि हम भी आगे चल के इन्हीं के नक्श कदम पे चल के हम भी इसी तरह का इवेंट इनके लिए भी ऑर्गेनाइज करें और उनको भी आगे चल के हम इसी तरह से फैसिलिटेट करें. हमारी कोशिश ये है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की कोशिश हमेशा यही रहती है कि जितने भी स्कूल प्राइवेट एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं कि हम अपने बच्चों को आला तालीम दें, चाहे वो छोटा स्कूल हो या कोई बड़ा स्कूल हो, लेकिन मुद्दा एक ही है कि एजुकेशन. और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है, हम अपने टीचर्स को भी पुश करते रहते हैं, अपने पेरेंट्स को समझाते रहते हैं, अपने बच्चों को समझाते रहते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि ये उस काबिल बने कि ये आगे चल के ऐसे वाले एग्जाम्स क्रैक करें. नीट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल एग्जाम है एंड इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड एग्जाम्स वी हैव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक ऑलमाइटी अल्लाह, ऑफ कोर्स, उन्हीं की वजह से. अगर उनका नहीं होता, ऐसा मेरी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा, शायद मैं सब अचीव नहीं कर पाती. एंड नेक्स्ट माई टीचर्स एंड माई ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बहुत ही ज़्यादा गाइड किया. उनकी सपोर्ट की वजह से आज जो कुछ भी मैं हूँ, अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स की वजह से. तो मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ. मेरी मदर अपने आप है. नीट क्वालिफाई करना मेरा अपना ड्रीम था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी सोसाइटी को कुछ दूँ, एक डॉक्टर बन के नहीं बल्कि एक फ्रेंड बन के. क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट टू गॉड, जैसे कि अभी मैम ने भी कहा कि सबसे ज़्यादा बिलीफ जो है वो डॉक्टर पर ही होता है.
सब बिलीव करते हैं कि नहीं चल हम डॉक्टर के पास जाएंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई बीमार होता है कुछ होता है नहीं डॉक्टर के पास चले जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, तो रिलाई करते हैं कम्प्लीटली ओवर द डॉक्टर्स। और फिर डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं मुझे ये मेरे पास आए हैं सो आई हैव टू ट्रीट देम, तो वो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और डॉक्टर का प्रोफेशन जो है काफ़ी ज़्यादा नोबल प्रोफेशन होता है। इट्स नॉट एट ओनली कि आप डॉक्टर बनेंगे तो सिर्फ आप वैसे ही अपनी सोसाइटी को सर्व कर पाएंगे। आई एम टेलिंग यू आप जो कुछ भी बने, वट एवर यू आर, a teacher, a lawyer, a doctor, an engineer, whatever you are, you should try to be the best. आप जो भी बने, you should try to be the best. आज आप सबको यहाँ पे एक छोटी सी ओकेजन के लिए हमने बुलाया आप लोगों को, ताकि एक तो ये नीट एस्पिरेंट्स है इनकी हौसला अफजाई हो जाए, फैसिलेशन हो जाए। जो हमें लास्ट ईयर 10th था और हमने प्रेजेंट 10th को बुलाया ताकि वो आप लोगों को देख के एक वे ले, एक राह ले, ताकि आगे इंशाल्लाह उनका जो गोल है वो इनको देख के वो फिक्सड करे कि हमें आगे क्या करना है। मैं खाली कुछ टाइम लेना चाहता हूँ क्योंकि एक छोटा सा प्रोग्राम है। मैं JM डार साहब और बे शाह साहब से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रीवियस 10th है यहाँ पे है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलवीर का फर्स्ट बैच था, मैम ये हमारा फर्स्ट बैच था, इसमें खाली 14 स्टूडेंट थे हमें लास्ट ईयर। हमारा टॉपर था 495 अफसा एंड 492 हमें आई थी हमें नुसरत 488 472 470 ऑलमोस्ट 450 के ऊपर थे माशाल्लाह। उन्होंने हमारी लाज भी रखी, ऊपर वाले ने इज्जत बख्शी। ये सारा जो क्रेडिट है फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे चेयरमैन साहब को जाता है, क्योंकि विदिन नो टाइम अगर हम देखें कि स्कूल का जो मरहला रहा है 2018 में हमारा फर्स्ट ईयर था यहाँ पे अलवीर का, एस्टैब्लिशमेंट डेट था वो 2018 था, 1.5 साल हो गया था आर्टिकल का जो मसला छिड़ गया, फिर उसकी वजह से 6 मंथ हमें ज़ाया हो गए, फिर उसके साथ ही कोविड के 2 साल चले गए जिसकी वजह से बहुत मुतासिर हो गए। लेकिन हिम्मत थी चेयरमैन सर के हाथ में, उसने कहा कि नहीं पीछे नहीं हटना, आगे जाना है, आपको जो चाहिए मैं ला के दूंगा, आपको जो फैकल्टी चाहिए जितनी भी सैलरी देंगे दे दो, अगर आपको वहां से नहीं आ रहा है सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन डर नहीं कोई बात नहीं आगे जाना है। तो ये सारा क्रेडिट जो है हमारे चेयरमैन सर के हो जाता है जिन्होंने इतने शॉर्ट स्पैन टाइम में हमें इतनी फैसिलिटी दी, बिल्डिंग को नो टाइम तैयार किया, फैसिलिटी दी, टीचर्स दिए, सारा कुछ दिया, तो ये उसका काम था। बाकी मेरा काम क्या था, उसकी गाइडेंस में मैंने सारा कुछ चला दिया। ये सिस्टम जो था मैंने बच्चों को वाइड टाइम टू टाइम टीचर्स दिए, जो भी फैसिलिटी हमारा काम था। अब खाली शिकायतें बच्चों से हमें कि डांट वाट पड़ी बीच में कभी कभार, लेकिन जैसे वालिदैन होते हैं बच्चों के लिए वैसे टीचर भी होता है। हमें इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है, हम पे ट्रस्ट किया है पेरेंट ने, उसने हमें अपना गुलाब सौंपा है, हवा, फिर उसकी नरिशमेंट हमें करनी है, उसको वे दिखानी है। ये टीचर्स का काम होता है, स्कूल का काम होता है। वी प्ले इम्पोर्टेंट रोल। मैं बाप का भी किरदार अदा कर रहा हूँ, माँ का भी किरदार अदा कर रहा हूँ। वो मुझे पता होता है जो पेरेंट को पता नहीं होता, उनको काउंसलिंग, अलग क्लासेस, सेशंस, पूरा कुछ सिस्टम चलाना पड़ता है, ये स्कूल का काम होता है। इसमें बच्चों को डांट भी पड़ती है, इसमें प्यार भी होता है, सारा कुछ ये सिस्टम इस वजह से चलता है। मेरी बच्चों से यही गुजारिश रहेगी, हो सकता है मैंने कभी डांटा, लेकिन इंशाल्लाह जब आप बड़े हो जाएंगे आपको पता चलेगा ये डांट नहीं थी, आप प्यार था। उस्ताद का काम यही है। और दूसरे जो मेरे प्रेजेंट 10th है, आपको पता होगा कल एग्जामिनेशन फॉर्म इनके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किए हैं, इशूज़ किए हैं, ऑनलाइन उसका पोर्टल चलता है। अब ये देखिए हमारी असगर रफीक है, एक उन्होंने नेट क्वालिफाई किया, उसको कॉन्ग्रेचुलेट अलवीर की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से उसने ये एग्जाम क्वालिफाई किया। ये आपके सामने हमारे यहाँ पे नाम याद नहीं है, ये भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये बच्चे आपके लिए एक राह है, ये आप इनको देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। तो हमें भी इंशाल्लाह आगे बढ़ के क्या करना है, नीट क्वालिफाई करना या दूसरे एग्जाम्स क्वालिफाई करना, या आप सब लोगों के लिए वे बननी चाहिए। तो आप सब से मेरी गुजारिश है कि माँ बाप की इज्जत, उसके बाद पढ़ाई ज़रूरी है, माँ बाप की इज्जत पहले होती है और पढ़ना ज़रूरी है, और स्कूल के टीचर्स की रेस्पेक्ट, और जितना टाइम आपको स्टडीज़ देनी है घर में जाके बैठ के टाइम वेस्ट करना, इससे कोई हल नहीं निकलेगा, ना आपका सारा कुछ ज़ाया हो सकता है। और इंशाल्लाह मेरे पेरेंट्स भी इधर हैं और मेरे दूसरे उस्ताद या बच्चे भी इधर हैं। हम इस चीज़ पे
पूरे ये है कि हम कोई भी स्पेस, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने के लिए। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। आज पिछले 10 दिन से 0 क्लासेस हमारे स्कूल के चल रहे हैं, अलग अलग बच्चों के। शाह साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रीवियस टेंथ है शाह साहब यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट बैच था यहाँ 10th से। हमारे कॉलेज 14 स्टूडेंट्स है, क्योंकि आप सर के साथ बाद में बिजी थे। हमने लास्ट ईयर 495 हमारा टॉपर रहा स्कूल से, हमारी गर्ल एक है अफसा कादिर, फिर 492, 488, 470 के आगे ऑलमोस्ट हमें सारे बच्चे रहे। तो ये सब मेहनत टीचर्स की है, लेकिन इसका क्रेडिट है चेयरमैन सर के, जो इसने पूरी एक टीम बाज़ाब्ता तश्कील दी, जो इसमें एक सर है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स यहाँ पर आए हैं, that you have accepted our invitation to encourage these little Banoon birds। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कहने में यहाँ आए आप, इसे हमारे बच्चे एनकरेज होते हैं। इन बच्चों की हौसला अफजाई करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। तो इसलिए इनके एनकरेजमेंट के लिए आप भी आए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस प्रोग्राम के हवाले से 2 लाइनें बोलूँगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो मिशन है, आज हमें हुक्म मिला था कि जो भी नीट क्वालिफायर्स हैं, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है रिसेंटली, उनको हमें फेलिसिटेट करना है। एंड वी आर सपोज टू फेलिसिटेट यू बिकॉज यू आर आवर फ्यूचर। आप ही वो हो जिनको ये नेशन सुधारना है, आप ही हमारा फ्यूचर हो। तो हमारा फर्ज बनता है आपको, आपकी हौसला अफजाई करना, आपकी इज्जत अफजाई करना। तो ये प्राइवेट स्कूल्स का एक मिशन है। ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, ये सिर्फ पेरेंट्स हजरात से मैं बोलना चाहूँगा, ये एसोसिएशन सिर्फ स्कूल्स की नहीं है। जो स्कूल्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये उसको एड्रेस करके उसका अजाला ढूंढेगी, बल्कि प्राइवेट स्कूल्स का मिशन जो है वो टोटली जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ये हमारा जो मुद्दा मकसद है वो एजुकेशन है। इसमें ऑल द स्टेक होल्डर्स आर मोस्ट वेलकम। इसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो मिशन है, वहाँ पर हम पेरेंट्स को लेते हैं, वहाँ पर हम बच्चों को, जिसको भी जो प्रॉब्लम होगी, चाहे कोई पेरेंट अगर गरीब होगा, उसको कोई गुजारा नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा सके, वो हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करके अपने बच्चे की तालीम को यकीनी बना सकता है, विदाउट एनी ट्यूशन फी, विदाउट एनी, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बनी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का काम सिर्फ, जहाँ तक मैं इससे मुंसलिक हूँ, तब से मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका काम सिर्फ यही नहीं है कि हम स्कूल्स की जो प्रॉब्लम्स है वो रोज बरोज बढ़ती है, लेकिन हम गिनते जाएंगे और उनका अजाला ढूंढेंगे। लेकिन उसका ये काम है कि हम सोसाइटी का सुधार कैसे करेंगे, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, हम बच्चों की तालीम को आम कैसे करेंगे, हम उन बच्चों तक कैसे पहुँचेंगे जो तालीम से सिर्फ इसलिए महरूम है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके माँ बाप गरीब है या इलिटरेट है, हम उनके पास पहुँचना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो बार साहब की क़यादत में है, उसका मिशन ये है, मेन रोल हमारा ये है। और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट में मैं यहाँ से पेरेंट हजरात को बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्कूल में लगती हो, या मेरे जो यहाँ पर बच्चे जो यहाँ से निकले हैं या किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, जिस भी स्कूल में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, चाहे एजुकेशन के रिलेटेड हो या फी के रिलेटेड हो या कोई भी मसला हो, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हम ये यकीन भी कर सकते हैं कि हम उसका कोई ना कोई हल आपको ढूंढ के देंगे इंशाअल्लाह। बाकी जहाँ तक इन बच्चों की बात है, जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया, आपको दिल की उम्मीद गहराई से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। और खासकर मेरे यहाँ पर जो 10th बैच है, जो मेरी इज्जत है, जो मेरी बेटियाँ हैं, मेरे बेटे हैं यहाँ पर, जो हमारा मैम यहाँ पर फर्स्ट बैच निकला है लास्ट ईयर एंड विद शाइनिंग कलर्स, उन्होंने मेरी इज्जत रखी है, वो भी यहाँ पर है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उनको भी और उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ साथ मेरी इज्जत को बचाया है, मेरी इज्जत भी रखी है, उनको भी दिल से शुरू। बाकी जो यहाँ पर जो भी मसले होते हैं एजुकेशन के रिलेटेड, आजकल जो चल रहा है समाज में, एक प्राइवेट स्कूल को एक माफिया बताया जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए कोई पेरेंट वगैरह तो झूठ हो रहा है। प्राइवेट स्कूल जो सकम करा पॉसिबल प्राइवेट स्कूल सकम प्राइवेट स्कूलों में तम बच पान, खास कर बजट स्कूल प्राइवेट स्कूल
زیادہ ہائی فائی سکول ہائی فائی پونسو رہی مگر تعلیم یمن سکولن میں اصل ملان بیٚیہِ کیٛاہ چھُ یمن منٛز گژھان یمن منٛز چھُ ہر کُنہِ سکوٗلس منٛز تقریباً 10 پٮ۪ٹھٕ 12 پٮ۪ٹھٕ 50 بچن تام فری پران یِتھ پٲٹھۍ سٲنِس سکوٗلس منٛز چھِ ییٚتٮ۪ن یِم اَسہِ مُنسلک آسان یِمن آسہِ پتہ سٲنِس سکوٗلس منٛز چھِ 7 ؤری بچہٕ تام یِم بِلکُل فری چھِ پران یِمن نہٕ کٕہٕنۍ فیٖس چاہے تتھ منٛز کانٛہہ کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ پیرنٹ غریب چھِ یا کانٛہہ بچہٕ چھُ آرفن یا کانٛہہ چھُ BPL کیٹیگری ہُنٛد بالکل فری آف کاسٹ ایجوکیشن دِوان میرے اپنے بچے میم یہاں پر پڑھتے ہیں اور وہ بچے جو یہاں پر فری پڑھتے ہیں وہ بھی میرے بیٹی کے ساتھ بیچ شیئر کرتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ بیچ شیئر کرتے ہیں کیونکہ میری نظر میں یہ سارے میرے بیٹے ہیں جو یہاں پر پڑھتے ہیں اور ہمارا یہ ہونا بھی چاہیے پرائیویٹ اسکولس کا یا ایک ٹیچر کا یہ ہونا بھی چاہیے کہ اگر ہم ان بچوں کو اپنے بچے سمجھیں گے تو ہم جو ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوگا لیکن بچوں سے میری ہمیشہ ایک بات میں کہتا ہوں کیونکہ آج نئے چہرے یہاں پر جڑے ہیں تو یہ بات بولنا بہت ضروری ہے 2 چیزوں سے کبھی محروم نہیں ہونا مائی ڈیئر اگر آپ نے نیٹ کوالیفائی کیا ہے اگر آپ نے 10th کا ایگزام پاس کیا ہے دس از جسٹ اے بگننگ دس از ناٹ دا فنشنگ لائن میرا اپنا بیٹا یہاں پر ہے ہی از پرسوئنگ آلسو MBBS اینڈ ہی از ان 4th ایئر ڈاکٹر آزاد لیکن فنشنگ لائن پہ یہ نہیں ہے ہمیشہ جو میں 2 باتیں آپ کو بولنا چاہتا تھا اپنے پیرنٹس کی دعائیں اور اپنے ٹیچرز کی دعائیں ان 2 چیزوں سے کبھی محروم نہیں ہوئی اور ان کے اپوزٹ میں 2 چیزیں جو آتی ہیں اپنے پیرنٹس کی بد دعائیں اللہ نہ کرے کسی کو ملے اور اپنے ٹیچرز کی بد دعائیں ان 2 چیزوں سے ہمیشہ ڈرنا ہمیشہ ان 2 چیزوں سے ڈرنا آلویز یہ کوشش کرنا کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیچرز کی بلیسنگ سے شکریہ سر نے بہت سارے سنہرے لفظ آپ کے لیے بتائے جس میں والدین کے بارے میں اور اپنے اساتذہ کے بارے میں بھی بتایا بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ ہم یہاں پہ آج ایک خاص موضوع کے لیے ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں جو کہ خاص کر یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آنے والا فیوچر ہے ہمارا ہم ان کو فیلسٹیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس سے بڑی کوئی خوشائند بات ہی نہیں ہوتی گیدرنگس بہت ساری ہوتی ہے گیدرنگس ہماری سوشل ہوتی ہے کلچرل ہوتی ہے لٹرل ہوتی ہے نان لٹرل ہوتی ہے لیکن یہ جو ایجوکیشنل گیدرنگس ہوتی ہے اسپیشلی جو ہمارا فیوچر ہے ان کو نرچر کرنے کے لیے ہوتی ہے اس کا ایک اسپیشل ہی ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہوتا ہے اس کا جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اس کے لیے آپ سب کو بہت زیادہ ویلکم اور میں آپ ان سارے بچیوں کو طلباء طالبات جو ہے جنہوں نے نیٹ میں کوالیفائی کیا ہوا ہے ان سب کو میں تہ دل سے مبارکباد دیتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آگے بھی یہ لوگ ایسے ہی کامیابی حاصل کریں لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوگی جب میں یہ جانوں گی کہ یہ بچوں کا خود کا چوائس ہے یہ پیرنٹس کا تھوپا ہوا نہیں ہے وچ از موسٹ امپورٹنٹ کیونکہ جو آج کی جنریشن جس کو جین زی بولتے ہیں وہ پیرنٹس کا اتنا زیادہ نہیں مانتے لیکن میں یہ نہیں کہوں گی لوگ اس کو بولتے ہیں کہ نگیٹیوٹی میں لیتے ہیں کہ وہ پیرنٹس کا مانتے نہیں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جنریشن گیپ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور خاص کر یہاں پہ میرے خیال سے بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے اگر نان ایجوکیٹڈ بھی ہوں گے تو بھی کوئی یہ نہیں گلا نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو اینسسٹرس ہیں وہ کوئی خاص پڑھے لکھے نہیں تھے وہ اتنے زیادہ اسکول نہیں گئے ہوتے لیکن تب بھی انہوں نے دنیا کو آج تک چلایا ہمیں بہت اچھے اسکالرس دیے ڈاکٹرس دیے سائنٹسٹس دیے وہ خود اسکول نہیں گئے تھے لیکن انہوں نے اپنی فیملیز میں فرسٹ جنریشن لرنرس پیدا کیے جن کے برعکس ہم نے دنیا کو ایک نئی ٹیکنالوجیز دی نئی چیزیں دی نئے لوگ دیے ہیومن ریسورس دیا نیچرل ریسورس دیا ہیومن میڈ ریسورس دیے یہ سب کچھ تب پاسبل ہوا جب ہم نے اس جنریشن گیپ کو ایکسیپٹ کیا آج کی جو جین زی ہے ان کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے ہاں بولنے میں ہوتا ہے جو ٹون ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ٹون اگر ہمارا صحیح ہے تو ہم اپنے پیرنٹس کو بھی کریکٹ کر سکتے ہیں although parents are nowhere incorrect کبھی نہیں ہو سکتے اگر آپ جیسے بچوں کو میں بولوں گی اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا سب سے بڑا ویل وشر اور سب سے قریبی دوست کون ہے دیٹ از یور پیرنٹ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے شک کی گنجائش نہیں ہے آئی مائی سیلف بینگ اے پیرنٹ کین سے لاؤڈلی کہ پیرنٹس اور جس نا وہ انکنڈیشنل لو ہوتا ہے انکنڈیشنل افیکشن ہوتی ہے اور انکنڈیشنل
प्लेटफॉर्म्स और फ्यूचर वो अपने बच्चों को देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि इस गैप को कैसे हम कम करेंगे, वो ये कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा समझें और बच्चों को बहुत ज़्यादा समझना है। उनको ये समझना है कि अगर बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब बेस्ट विशेस मिलेगी तो ही तो आगे जाएंगे ना। आप एग्री करते हो इस चीज़ से? और पेरेंट्स भी इस चीज़ से एग्री करनी चाहिए कि हमें जो बच्चों के साथ गैप्स आ गई है हमें उसको मिनिमाइज करना। मिनिमाइज ऐसे करेंगे जब हम इनको समझेंगे। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की तरफ से हमने जो जिन बच्चों ने नीट रिसेंटली क्वालिफाई किया है उनके लिए फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा था। तो इसमें हमने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो भी बच्चों ने क्वालिफाई किया उनको बुलाया था। तो ये हमारा हक बनता है क्योंकि हमारे अपने बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है, इनको एनकरेज करना, इनकी हौसला अफजाई करना हमारा फर्ज है। हमने यहाँ पर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को बुलाया था, जैसे आपने देखा अच्छी खासी गैदरिंग थी यहाँ पर, और सिविल सोसाइटी मेंबर्स को बुलाया था। तो हमारी मैसेज हमेशा यही रहता है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो है एजुकेशन पे, क्योंकि ये बच्चे इन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना ये एग्जाम नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है, इनको एनकरेज करना हमारा अवलीन फर्ज है और ये हमारा फ्यूचर है, हमें इनकी हौसला अफजाई करना जरूरी है। और पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारिए। आजकल जो माहौल में, जो सोसाइटी में एविडेंस है, जो माहौल में थोड़ी सी खराबी हुई है, उस वजह से अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारिए, उनको अकाउंटेबल बनाइए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनके फ्रेंड्स बनिए और उनको अकॉर्डिंगली गाइड कीजिए। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है, क्योंकि अपने बच्चों के दोस्त बनिए, अपने बच्चों पर नजर रखिए, अपने बच्चों को जब हम जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी पेरेंटिंग तो इजी थी, आज के जो पेरेंट्स हैं हम पर हमारा ज्यादा मेन रोल बनता है और हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी को संजीदगी से लेनी चाहिए, हमें अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, तब जाके इंशाअल्लाह रहमान माहौल में एक सुधार आएगा।